میرے ماموں فوت ہوئے تو میری مامی نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں اکثر مامی کے گھر میں رہتا تھا۔ مامی میری ہر بات مانتی تھی، مگر خاندان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میرے اپنی مامی کے ساتھ کوئی غلط قسم کا رشتہ بن گیا ہے۔ دراصل میری مامی کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی خوبصورت لڑکا دیکھتی تو اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی لیے میں بھی خاندان میں بدنام ہو گیا تھا۔ میرا نام عتیق ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری 2 بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی شادی میری تائی اماں کے گھر ہوئی تھی، جبکہ چھوٹی بہن نے اپنی پسند سے شہر کے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی اور شہر میں جا بسی تھی، جبکہ میں اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں ہی رہتا تھا اور میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ گاؤں میں میری ایک مامی بھی رہتی تھی جن کا شوہر حیات نہیں تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت عجیب سا تھا، مطلب وہ اپنی ہی دنیا میں رہنے والا تھا۔ اس کا نام منیر تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا۔ ایک روز میں اپنی مامی کے گھر گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو میری ماں نے کہا کہ کھانا لگا دوں، تو میں نے کہا نہیں، مامی نے اتنا مزیدار کھانا بنایا تھا، میں نے تو وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیا ہے، اس لیے اب بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ بولی کہ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ کیوں، ان کے گھر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، آخر وہ میری سکی مامی ہے۔ تو میری بات پر میری ماں نے کہا کہ تیرا ماموں اب اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ عورت کردار کی اچھی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ اتنا گھلنا ملنا اچھا نہیں ہے۔ اگر تیرا ماموں زندہ ہوتا تو پھر اور بات تھی، وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اس کا بیٹا اس کے کسی کام کا نہیں ہے، تو ہر وقت اس کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ بھول گیا وہ بات جو پہلے ہوئی تھی۔ میں ماں کی بات پر ہنسنے لگا تھا کیونکہ مجھے یاد تھا مجھے میری مامی کے ساتھ بدنام کیا گیا تھا۔ دراصل میرے ماموں عمر کا زیادہ نہیں تھا اور مامی بھی عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ ان کی اور میری عمر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں اس عورت نے مامی پر الزام لگایا تھا جس کی مامی سے پہلے ہی دشمنی تھی، آپ کی بھی یعنی کہ آپ کی نند، کیونکہ ماموں نے پھوپھی کی بیٹی کے بجائے مامی کو پسند کیا تھا اور آپ نے بھی اس وقت اپنے بھائی کی خوشی میں ان کا ساتھ دیا تھا، اور پورا خاندان جانتا ہے کہ پھوپھی آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کے کردار کشی کی ہے، پھر بھی سب اس کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ وہ میری ماں کی جگہ ہے، جیسے میرے لیے آپ محترم ہیں ایسے ہی وہ بھی ہیں، مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اتنی سیدھی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بری لگتی ہیں کیونکہ ایک تو آپ کی بھابھی ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے آپ کے اور ابا کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوئی ہے۔ میری ماں نے میری بات کو نظر انداز کیا اور کہا وہ مجھے بری لگتی ہے اور مجھے وہاں تمہارا جانا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اگر میں تجھے کسی کام سے منع کر رہی ہوں تو میرے ساتھ کیوں بحث کر رہے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، لیکن اصل بات تو یہ تھی میری مامی آج کل بہت پریشان تھی اور مجھ سے ہی اپنے دل کی بات کیا کرتی تھی۔ میں ان کے ہی گھر جانا چھوڑ دیتا اور ان کی بات نہیں سنتا تو وہ کس کو کہتی؟ ویسے بھی ہمارے گھر میں ماموں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا کیونکہ وہ ایک عجیب طرح کا انسان تھا، زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میری نانی اور امی دونوں کپڑے سلائی کر کے اپنا گھر چلاتی تھیں اور ابھی بھی یہی کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ماموں نے خاندان کے کچھ امیر لوگوں سے قرضہ لیا اور باہر کے ملک چلے گئے اور سب کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں وہاں جا کے یہ پیسے کسی کاروبار میں لگاؤں گا اور تم سب کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، لیکن وہاں جا کے وہ پیسے بھی ڈوب گئے اور خود بھی کتنا عرصہ واپس نہ آئے، اور جب واپس آئے تو ان لوگوں نے ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ یہی دنوں نے ماموں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لوگوں کو ان کے پیسے بھی نہیں ملے اور ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا تھا۔ آج مجھے ویسے بھی مامی نے ایک بات بتائی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تھی لیکن مجھے لڑکی پسند آ گئی، تو میں نے کہا کہ بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں۔ آج کل ویسے بھی ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو دیکھا
तो सबके सामने इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया था। मुनीर को पहले ये मसला नहीं था, पर अचानक ही पता चला कि इसको ये बीमारी है, और हमें ये नहीं पता था कि अगर वो इस तरह से किसी भी लड़की को देखता है तो इसे दौरा पड़ जाता है। अब मैं इसका इलाज करवा रही हूँ। मेरी मामी कहती थी कि सब कहते हैं मुनीर की शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी शादी कैसे करवाऊँ? ये तो अपनी बीवी को देखेगा और इसके सामने भी ऐसा ही हो जाएगा। इस तरह इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? और वैसे भी किसी भी लड़की को पता हो तो वो इसके साथ शादी नहीं करेगी। इसके माँ बाप भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। आखिर मैं इसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? तब मामी को मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, मैं इससे बात करता हूँ कि किसी तरह इसका इलाज हो जाए, मुनीर को कोई ऐसी दवाई दी जाए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मैंने मामी को ये तसल्ली दी थी और कहा था कि मैं कल आऊँगा और मुनीर को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ मेरी माँ का कहना था कि मैंने वहाँ पर जाना ही नहीं है, मगर किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं होता, इसीलिए मैंने सोच लिया कि माँ से छुप कर चला जाऊँगा। मामी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर को चलाने के लिए इस घर में किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी था, और इनका बेटा तो किसी काम का नहीं था। घर में और सौ तरह के काम होते हैं जो वो खुद नहीं कर सकती थी, और फिर पूरे ख़ानदान को इनसे अल्लाह वास्ते का बैर था, और ख़ानदान में से मुनीर को किसी ने अपनी बेटी नहीं देनी थी, इसलिए वो बाहर रिश्ते तलाश कर रही थी। इनको अपने बेटे की शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुनीर से बात करो, इसके साथ दोस्ती करो, वो हर वक्त अकेला रहता है, इसकी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। मामी की बात सुनकर मैंने कहा, मामी मैंने भी बहुत कोशिश की थी इसके साथ दोस्ती करने के लिए, वो वाकई अजीब सा है, अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रहता है, इसने पढ़ाई में भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये तो शुक्र है आपको अपने बाप की तरफ से जो दुकानें मिली हैं, इनसे आपके घर का इंतज़ाम चल रहा है। मैं भी एक दुकान पर बतौर हेल्पर का काम करता था। फिर एक रोज़ मैं अपनी दुकान से वक्त निकाल कर मामी की तरफ गया और मुनीर को अपने दोस्त के पास ले गया, जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर था। मामी भी साथ थी। इसको सब कुछ बताया, इससे दवाई ली। इसने कहा ये ठीक हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, बस आपने एक गोली रोज़ाना इसे खिलानी है। फिर हम लोग घर आ गए थे। इस दौरान मामी ने एक और रिश्ता देख लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, आपके बेटे को थोड़ा चेंज होने दें, पर इनका कहना था कि मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मेरी तबीयत का भी आजकल कुछ पता नहीं चलता, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या बनेगा? इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए, और क्या पता शादी के बाद ये ठीक हो जाए। मैं इसको दुकान बना दूंगी ताकि इसका घर चल पड़े। वहाँ जाकर हम लोग बैठे थे और लड़की भी सामने आ गई। पहले तो मुनीर को कुछ नहीं हुआ, हमने सोचा कि शायद दवाई का असर हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक इसकी हालत बिगड़ने लगी थी, और वो सब लोग भी हैरान हो गए, और लड़की भी वहाँ से डर के भाग गई। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बीमार बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। आप भी इन औरतों में से हैं जो ये समझते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये गलत बात है। पहले आप इसका इलाज करवाएं, इसके बाद इसकी शादी करने के बारे में सोचें। वो लोग तो बदतमीज़ी पर ही उतर आए थे। मुझे इन पर गुस्सा आ गया और मैंने इनसे कहा कि आप ये बात आराम से भी कर सकते हैं। हम लोग रिश्ता देखने आए थे, आपकी बेटी को उठाने के लिए नहीं आए थे। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं। मेरी मामी ने कहा कि गुस्सा नहीं करो, और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। मामी को इनके घर छोड़कर मैं वापस आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि दोस्त की शादी में गया था। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, आप क्यों परेशान बैठी हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन रुबीना, जिसकी शादी शहर में की है, बस इसी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं कैसे लोगों में चली गई है, वो इसे आने ही नहीं देते। जब से शादी हुई है ये सिर्फ एक ही दफ़ा आई है।
और हमें भी वहाँ जाने से मना किया हुआ है। हम लोग भी एक दफ़ा ही वहाँ गए थे। तो इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा था कि मेरा दोबारा जाने का दिल ही नहीं किया था। पता नहीं रुबीना को इस लड़के में क्या पसंद आया था कि इसने जिद करके इस लड़के से शादी की है। अम्मी का कहना था कि मेरी बहन रुबीना से फ़ोन पर बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो परेशान है और कोई बात छुपा रही है। मैं पूछती हूँ तो कहती है सब ठीक है। मैंने कहा अम्मी आप भला वजह खुद को हल्कान कर रही हैं, अगर कोई बड़ा मसला होता तो वो ज़रूर बता देती। बाकी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और फिर रुबीना ने शादी भी तो अपनी मर्ज़ी से की है। हमें तो वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ का कहना था कि इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। पसंद की शादियाँ कामयाब नहीं होती, लड़की पर भी दबाव होता है और वो सब कुछ सहकर यही सोचती रहती है। अब मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इसीलिए वो बर्दाश्त करती है। अम्मी बहुत परेशान थी। मैंने इनको तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, और अगर ज़्यादा परेशानी है तो मैं जाकर रुबीना के पास चक्कर लगा लूँगा। मैं ये कहकर अपने कमरे में चला गया। इधर मेरी मामी भी बहुत परेशान थी, क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में फैलने लगी थी। जब इस तरह के एक से दो तमाशे हुए तो इस बात की कहीं कहानियाँ बन गई, और आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया। जब भी आंटी मलाइका अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती तो इसके लड़के को दौरा पड़ जाता है, और लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। अगले रोज़ जब मैं मामी के पास गया तो मेरी मामी ने रोते हुए कहा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, पहले शोहर मर गया और अब बीमार रहता है। मोहल्ले की एक औरत ने मामी को मशवरा दिया कि आप अपने बेटे की शादी किसी बेवा औरत से करवा दें, फिर इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ये एक तरह का टूना है। मैंने मामी से कहा ये किसने मशवरा दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बातें एक ऐसी औरत ने बताई हैं जो लोगों के मसले सुनती है और इनको तावीज़ वगैरह भी देती है। मैं इसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन वो मोहल्ले में किसी के घर भी बैठी थी और मैं भी वहाँ पर गई, तो इसने मेरे बेटे के बारे में सुनकर ये मशवरा दे दिया। अब तुम ही बताओ, मैं अपने जवान बेटे की शादी किसी बेवा औरत से कैसे करवा सकती हूँ? मेरे बेटे के अंदर कोई बुराई तो नहीं है। मेरी मामी ने रोना शुरू कर दिया था, और इनके बेटे के अंदर वाकई कोई बुराई नहीं थी। वो तो बस चुपचाप रहता था, किसी को कुछ कहता भी नहीं था। मैंने मामी को चुप कराया और समझाने के लिए कहा कि इस औरत ने शायद आपको कुछ सोच के ही बताया होगा, और जैसा कि आपने बताया है कि वो लोगों के मसले सुलझाती है और वो ऐसे मामलात को बेहतर जानती होगी। मेरी बातों पर मामी ने हैरान होकर मुझे देखा और कहा तुम भी ऐसी बातें करते हो? मैंने कहा अगर आप किसी ऐसी लड़की से मुनीर की शादी करवा दें जिसका शौहर इस दुनिया से जा चुका हो, तो इसे भी किसी से शादी करने की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मुनीर से शादी के लिए हामी भरेगी और समझौता कर लेगी, क्योंकि इस माशरे में लड़की अगर बेवा हो जाए तो बस बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी जाती है, और वैसे इसकी शादी हो गई तो कौन सा हर दिन मुनीर को दौरा पड़ेगा। मामी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से मर्द बीमार भी तो हैं, कोई दिल का मरीज़ होता है, किसी की टांग में नुक्स होता है और किसी को कोई और बड़ी बीमारी होती है। ये भी तो एक बीमारी है, अगर आप इसका इलाज करवाएंगी तो इंशाल्लाह मुनीर भी ठीक हो जाएगा। आप अगर किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दें तो वो इसका भी ख्याल रखेगी और आपके घर को भी संभालेगी। मेरी मामी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा क्या तुम अपने लिए ऐसी औरत को पसंद करते हो? मैंने कहा कि देखें मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मामी ने कहा हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा आप भी ज़माने की ज़बान बोल रही हैं, आप भी इन औरतों में से हैं जो किसी भी औरत को अच्छा नहीं समझती। अभी आपने कहा कि मेरे बेटे को बीमारी है, तो इसका क्या कसूर है? अगर इसी तरह किसी औरत का शौहर मर जाता है तो इसमें इस औरत का क्या कसूर है? इसको इस बात की सज़ा क्यों मिलती है? मेरी मामी लाजवाब हो गई और उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर मामी कहने लगी खैर मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर शहर जाना चाहती हूँ, मुनीर को भी साथ लेकर जा रही हूँ।
वहाँ जाकर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ को ये सब पसंद नहीं है और तुम्हें ज़रूर मना करती भी होंगी। बेटा, मेरा तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़्यादा मसला नहीं था। तुम्हारे मामू की शादी पर तुम्हारी माँ ने इसका साथ दिया था, मगर शादी के बाद तुम्हारा मामू सिर्फ मेरी बात मानता था, अपनी बहन की बात नहीं मानता था। बस इसी वजह से तुम्हारी माँ को मैं बुरी लगती हूँ। इसका भी कसूर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम रिश्तों से नफरत करना अपना हक समझ लेते हैं। खैर, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना। मुनीर का दिल वहाँ पर लग गया तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी। 1-2 रातें जहाँ पर गुजारूँगी, क्या तुम मेरे पास रुकोगे? मैंने कहा, आप घर में अकेली होंगी, मैं ज़रूर आऊँगा। मामी ने कहा कि हमेशा खुश रहो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं इसकी शादी ज़रूर तुमसे करवा देती। इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया। मामी ने कहा कि मैं कल सुबह शहर के लिए निकल रही हूँ। और फिर अगले रोज़ मामी शहर के लिए चली गई और मैं अपनी दुकान को संभालने लगा। इस दौरान 1-2 बार मेरा और अम्मा का इरादा बना कि रुबीना के पास चक्कर लगा आते हैं, मगर जब इससे बात की तो इसने जल्दी से बोल दिया कि अभी मत आना, वो किसी की शादी पर गई हुई हैं। फिर मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। मामी को वहाँ गए 15 दिन ही हुए थे कि हमें ये खबर मिली कि उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी है। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी माँ ने कहा, देखो बेटे की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं, और तुमसे तो बहुत प्यार करती थी ना। मैंने कहा, इसकी शादी किसी मजबूरी में हुई होगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसकी शादी हो गई है। मैं तो शहर जा रहा हूँ अपनी भाभी को देखने। अगर आप भी चाहें तो मेरे साथ चलें, क्योंकि आपका भी हक बनता है। आखिर को मुनीर आपका इकलौता भतीजा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कुछ देर के लिए चुप बैठी रही। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हालांकि इस गंदी औरत के पास मेरा जाने को दिल नहीं करता। मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस हुआ था, मगर इनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। हम लोग अगले ही दिन शहर जाने के लिए तैयार हो गए। ये वही शहर था जहाँ मेरी बहन रुबीना की शादी हुई थी, इसलिए शायद मेरी माँ जाने के लिए भी तैयार हो गई थी। वैसे हमें इनके घर जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी बहन ने कहा था कि इसके घर कोई भी नहीं आएगा, पर मेरी माँ के दिल में हसरत थी कि शायद हम रुबीना से मिल पाएं, इसीलिए वो भी मेरे साथ ही रवाना हो गई। 2 घंटे के बाद हम लोग मामी के भाई के घर मौजूद थे। उन्होंने हमें बैठक में बिठा दिया। थोड़ी ही देर बाद मामी हमारे पास आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी और खुश भी लग रही थी। मैंने इनको मुबारकबाद दी और अम्मी ने भी कहा कि चलो, हमारे मुनीर की शादी हो गई है, अब आगे अल्लाह नसीब अच्छे करे। मैंने मामी को कहा कि भाभी से मिलवाएं। तो जब मामी ने अपनी बहू को बुलाया तो हम दोनों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। हम लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वो कोई और नहीं, हमारी अपनी रुबीना थी, जो कि पहले ही की बेनिस्बत बेतहाशा कमज़ोर हो चुकी थी। वो दौड़कर अम्मी और मुझसे लिपट गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये आखिर कैसे हो सकता है? फिर मामी ने हमें बताया कि रुबीना ने अपनी पसंद से शादी की थी, मगर इसका शोहर बहुत जालिम था, इस पर बहुत जुल्म करता था और इसे आगे बेचना चाहता था। जब ये ना मानी तो इसने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। ये दारुल अमान में रह रही थी और आप लोगों को यहाँ आने से मना करती थी, ताकि आप इसकी हकीकत न जान सकें, क्योंकि इसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और आपने इसे बहुत बुरा भला भी कहा था। फिर मामी कहने लगी कि मैं दारुल अमान में अपने मुनीर बेटे के लिए लड़की देखने गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात रुबीना से हुई तो इसने मुझे रोते हुए अपनी कहानी सुना दी। तब मैंने इसकी मदद करने के लिए इस बारे में सोचा और इसे अपनी बहू बनाकर अपने भाई के घर ले आई हूँ। अब ये मेरे बेटे मुनीर की बीवी है और मेरी बहू है। तुमने ठीक कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी औरत से करवाऊँ तो वो इसे संभाल लेगी। आज इनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया है और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, और एक बार भी मुनीर को दौरा नहीं पड़ा। मेरी माँ की आंखों में आंसू थी। मेरी बहन ने इतने बड़े दुख देखे थे। उन्होंने मेरी मामी से माफ़ी मांगी और मुनीर को अपना दामाद कबूल कर लिया था।
मैंने भी मामी को कहा कि आपने वाकई बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और फिर हम सब लोग खुशी खुशी गांव वापस आ गए। तो ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि मेरा कज़न मनीर मेरी बहन को पसंद करता था, लेकिन इसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और जब रुबीना की शादी हुई तो इसी सदमे में वो बीमार रहने लगा था। अब फिर रुबीना इसके नसीब में आ गई थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। कभी कभी इसके साथ थोड़ा बहुत मसला बन जाता था, लेकिन तब मेरी बहन इसको अच्छे तरीके से संभाल लेती है। और दूसरा ये कि मेरी मामी कोई बद किरदार औरत नहीं थी। बस मामी ज़रा सख्त किस्म की औरत थी, ख़ानदान में किसी की नहीं मानती थी, बस अपनी करती थी। इसी वजह से ख़ानदान की कुछ औरतों ने मामी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वह बद किरदार है। इन औरतों में मेरी माँ भी शामिल थी, मगर अब उन्होंने मामी से माफ़ी मांग ली थी और मामी ने इन्हें माफ़ भी कर दिया था। अब हमारा आपस में रिश्ता भी बदल गया था और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मेरी बहन भी अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रह रही थी।